आणि पवेलियनच्या साइडला आपल्याला बघायला भेटतं सुकृत यांना the striker of the opening game of the tournament, first goal to be scored in the tournament. तसेच गोलच्या पाठी जे आमचे मित्र आहेत अंकुश संघाचे आणि हरबादेवी संघाचे, त्यांच्याशी रिक्वेस्ट करतो रशीच्या या साईडला यावं. गोल पोस्टच्या पाठी जे उभे राहिलेत आमचे जे मित्र आहेत तिथे हरबादेवी संघाचे आणि अंकुश संघाचे, त्यांच्याशी विनंती करतो रशीच्या या बाजूला यावं. सुंदर सारखं आहे टुर्नामेंट. चौथा राऊंड, दिवसाचा चौथा राऊंड बघायला भेटतो आपल्याला, ते म्हणजे वर्सोवा आरके बॉयज वर्सेस आझाद स्पोर्ट्स क्लब. सर्व मॅचेस जे खेळले जात आहेत ते 15 मिनिटाचे हाफा. सो गुड अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू द टीम to play, perform well, make an impact, and even if you're trailing by a goal or 2 goal or something like that, there is enough amount of time for you to come back. So keeping that in mind, 24 teams only. We've had so many interested team wanting to take participation in this particular tournament. However, to ensure that every team gets ample time to perform and to do well in that given allotted time, we've ensured that only 24 teams on a first come first serve basis were given the opportunity to participate. Saket, one of the leading referee for Mumbai this year, and doing an absolute fantastic job in the professional world for Mumbai. Clearly in command of this game, Azad versus RK Boys, Versova. 15 minutes each half. This is going to be very tricky match for Azad, because on one hand you guys are watching a team that has so often this season produced results of higher caliber. A lot of passion, lot of efforts on the ground, lot of skills, lot of experience as well, right from in the goal to the midfield and up front. Absolute gem of a game, Versova. So often, you're talking about 7 and 8 years back. If you look at, I think a little over 7 and 8 years back, a lot of football was played in Versova, a lot of them. And when I say a lot of them, I mean a 9-a-side tournament that were played. And a game of very high quality was displayed there. Some of the players playing now in this particular match have obviously been inspired by what really happened over there, with the likes of Tony Fernandez, Osbin, Maxi Uncle, of course, making a mark for it. But at the same time, the teams like Shiv Gully, Dongri Gully, Manvi Gully, Patil Gully, all proving their worth alongside Spartan and so forth. Scorpios. These are the teams who have registered in the history of Versova football. And that's what's produced these kind of players that we're going to be witnessing over here today in the form of RK Boys. RK Boys, like I said, has been performing well this season. Jersey clash होने के कारण यहाँ पर रेफरी को 2 मिनट का ब्रेक लेके बाहर आना पड़ा है. और Versova Koliwada, that's the update. So it's Versova Koliwada versus Azad from Mud. देखेंगे कौन सी टीम यहां पर दबाव डालती है और ओपोनेंट के ऊपर. जैसे कि आप देख रहे हैं आजाद के कैंप में यहां पर एक्सपीरियंस है और यंग जनरेशन का उत्साह भी है. ऑन द साइड लाइन आप मोहित को देखेंगे, जीत को देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग 8 में
with the likes of Monish, Mayur, Swadesh, Manish and company. और मैच की शुरुआत यहां पर होते हुए वर्सोवा कोलीवाड़ा की ओर से खेलते हैं। गेंद अपने ही पास रखा है, अपने ही हाफ में खेलना चाहते थे, कंट्रोल किया है और प्रेशर में जरूर डाला है। मौका बन सकता था, मिसक्यूट शॉट है, गोलकीपर मौजूद और पीछे से हाथ का इस्तेमाल किया, उसी की ले में दिखे हमें गोल की रेफरी फाउल का डिसीजन चेंज। लंबे से लिया हुआ शॉट, फ्लिक करने की कोशिश, युग फ्लैंक पर कंट्रोल करेंगे वर्सोवा कोलीवाड़ा के लिए। कट किया है, मौका है लेकिन उतनी अच्छी गोलकीपिंग, टारगेट नहीं हिट कर पाए। क्या ये कॉर्नर का इशारा है? नहीं, लाइन्समैन ने कहा कि नहीं भैया ये गोल किक होगा। सैबी आजाद की ओर से गोलकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थामे है। अपनी नई जर्सी, नई किट में देखने को मिल रहा है स्वदेश। आजाद की ओर से ये सीधा दिख रहा है कि भाई हम अटैक करेंगे। मॉरिस, उभरते सितारे, मनीष, अच्छी डिफेंडिंग, गेंद अभी भी अंदर है, खेल दिया यहां पर मोनिश को। बढ़िया बॉडी प्ले, फ्लैंक पर अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ी पंकज डेंजर एरिया में डालना चाहेंगे और थोड़ी दूर से यहां पर निकलती हुई गेंद। ये एक ऐसा भव्य दिव्य टूर्नामेंट है जिसे जीतने के लिए सारे के सारे खिलाड़ी भरपूर प्रयत्न करते हुए और मौका गेंद को डेंजर एरिया से बाहर निकालने में सक्षम यहां पर वर्सोवा कोलीवाड़ा। फ्लैंक चेंज करने की कोशिश, मॉरिस कंट्रोल नहीं कर पाए। फर्स्ट टाइम खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे यहां पर। युग, उभरते सितारे हैं वर्सोवा की तरफ से। पंकज कंट्रोल किया, खेले हैं स्वदेश को फर्स्ट टाइम। मोनिश कट किया है, फ्लैंक चेंज, मनीष फर्स्ट टाइम खेलने की चाहते हैं लेकिन अभी तक अपने लय में नहीं आए हैं। युग डिस्पोजेस, पंकज फ्लैंक चेंज, द डेंजर मैन मनीष क्रॉस किया है। यश हेडर लेना चाहते हैं लेकिन गेंद को अंदर नहीं रखे और इसी की तुलना करने की जरूरत है हमें यहां पर, क्योंकि मनीष ये बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर हैं, एक बढ़िया प्लेयर हैं। भले ही वो अपने लय में नहीं दिख रहे लेकिन गेम का रुख अपने एक कदमों से कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक अच्छा क्रॉस, यश ये मानो कि बहुत ही लाइट एफर्ट, पीछे जाने की कोशिश, नीचे रखना चाहते थे, रख नहीं पाए, ओपन हेडर, चांस गवाया। पहला मौका यहां पर बनता हुआ आजाद को गवाया है। मयूर, अब वर्सोवा कोलीवाड़ा अटैक करना चाहते हैं मगर गेंद को फील्ड में नहीं रख पाए। साइडलाइन थ्रो यहां पर पंकज को मिलेगा। यश डिस्पोजेस, छीन लिया है गेंद उनके पास से। मौका हो सकता है फिर से एक बार लेकिन ताकत नहीं उस शॉट में, टेक्निक की थोड़ी। अभी स्वदेश पीछे से पुश और फाउल ओपोनेंट के पास। जैसे कि मैं पहली तुलना कर रहा था, साकेत मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के अंपायर्स, जो रेफरीज, क्रिकेट में हम अंपायर कहते हैं, फुटबॉल में जो रेफरी कमेटी है उनके हेड है। फिलहाल बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास दिया गया है और अच्छा जॉब कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, मड आइलैंड फुटबॉल की ओर से। हम शुक्रगुजार जरूर हैं उनके, हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी बिजी स्केड्यूल में भी वो यहां पर आकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आजाद स्पोर्ट्स क्लब की ओर से शुक्रिया करना चाहूंगा, उसी तरह मड आइलैंड फुटबॉल की ओर से शुक्रिया करना चाहूंगा। साकेत, पहली हाफ जारी है, दोनों ही टीम का पेस बढ़िया है मगर कोई
एक मौका जरूर बना था आजाद को। युग अच्छा 1-2-1 डिफेंसिव एरिया में फ्लैंक चेंज करना चाहते हैं, मॉरिस ने छीन लिया है। स्वदेश कंट्रोल करना चाहते थे, बहुत ही गेंद अभी भी वर्सोवा कोलिवाड़ा के पास। दोनों ही टीम संघर्ष करती हुई, अच्छी टर्न क्रॉस करेंगे, लेकिन सेकेंड पोस्ट पर यहां पर थोड़ी दूर से निकल गई गेंद। अभी भी डेंजर हो सकता है आजाद स्पोर्ट्स क्लब के लिए। वर्सोवा कोलिवाड़ा बढ़िया गेम दिखाते हुए यहां पर। युग शॉट लेंगे, थोड़ी दूर से निकली, कर्व करना चाहते थे, लेकिन जो बेंड चाहते थे वो नहीं मिला। इसी दौरान गोल किक मिलता हुआ आजाद स्पोर्ट्स क्लब को। युग डेंजर एरिया में गेंद, लेकिन अच्छे से रीड किया वहां पर सैबी। इन्होंने अच्छी गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हैं, अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने बेस्ट फॉर्म में उनका परफॉर्मेंस अलग दर्जे का होता है, अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला वेलनकनी और गोराई के बीच। दोनों ही टीम से गुजारिश है अपने किट के साथ तैयार रहें। वक्त ये रुकता नहीं है, उसी तरह हम भी वक्त के साथ चलना पसंद करेंगे। दोनों ही टीम से गुजारिश, वेलनकनी जो कि मर्ड की टीम है, उसी तरह गोराई कोलिवाड़ा गोराई की टीम, दोनों ही टीम से गुजारिश है अपने किट के साथ रेडी रहें। आपका मैच तुरंत इस मैच के बाद फील्ड की ओर चलते हैं। 0-0 पर चल रही है। आजाद की बढ़िया शुरुआत के बाद थोड़ी गेम में वापसी करने की कोशिश वर्सोवा कोलिवाड़ा द्वारा, और अभी तक किए जरूर है अच्छी कोलिवाड़ा, अच्छा प्रदर्शन चाहेंगे इसी फॉर्म को बरकरार रखें। और पहले हाफ में अगर कोई गोल नहीं दाग पाते तो गोल कंसीड भी नहीं करना होगा, यही चाहेंगे। मनीष फ्लैंक पर खेलना चाहते थे, लेकिन रन शायद अंदर की ओर कर दे, कोऑर्डिनेशन की कमी। एक अच्छी बात जो देखने मिल रही है आजाद की ओर से ये बात है कि भैया अगर बॉल लूज भी कर रहे हैं तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स या फिर डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा नहीं है, तुरंत गेम में वापसी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है सभी खिलाड़ियों को और सभी ऑडियंस को कि भैया आप अगर आपका पहला मैच ग्राउंड पर खेल रहे हो तो आपको सेट होने टाइम लगेगा। ये हर बार हम जिक्र करते हैं, लेकिन फिलहाल फर्स्ट हाफ जारी है, काफी कुछ समय निकल गया है। दोनों ही टीम को आसान नहीं हो रहा है इस गेम में। मौका है स्वदेश यहां पर, लेकिन मौका फिर से बढ़ता हुआ। स्वदेश के पास गेंद, शॉट लेना चाहेंगे लेकिन टारगेट नहीं हिट किया। अच्छा एफर्ट, सारे खिलाड़ियों से गुजारिश है कि आर्ग्यूमेंट ना करें, रेफरी का डिसीजन फाइनल होगा। और येलो कार्ड्स काउंट किए जाएंगे। याद रखना है हमारे पास यहाँ पर पवेलियन बॉक्स पर हम सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, तो येलो कार्ड जरूर, येलो कार्ड हो रेड कार्ड हो, सारे के सारे काउंट किए जा रहे हैं। सैबी अपनी अच्छी गोलकीपिंग की ट्रेलर दिखाते हुए वहां पर स्वदेश फ्लिक किया है, फ्लैंक पर मौका हो सकता था लेकिन एंटीसिपेट नहीं किया और डेंजर एरिया से दूर निकाला है वहां वर्सोवा कोलिवाड़ा। मयूर गेंद को अंदर नहीं रख पाए, साइडलाइन थ्रो मिलता हुआ। पहले हाफ जारी है, कोई गोल स्कोर नहीं, दिन का चौथा राउंड है ये। 12 टीमें खेलेंगे आज और इन 12 टीमों में से 6 टीम आगे बढ़ेंगे अपने सेकेंड राउंड के लिए। ड्रॉ फेंका जाएगा, फाउल का करार, पीछे से टैकल, 2 येलो कार्ड। 2 अलग अलग गेम में भी अगर आपको मिलता है तो शायद आप तीसरी गेम नहीं खेल पाएंगे, दैट्स द रूल। तो सारे टीम्स को इसका ध्यान देना होगा, किसी तरह
फाउल ज्यादा कमिट ना करे और येलो कार्ड ना खाए। अगर आपको पूरा टूर्नामेंट खेलना है तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट से वर्सोवा कोलीवाड़ा सीधे मौका, चांस हो सकता था बाउंस बैक में के लिए, कोई प्लेयर नहीं वहां पर, रिबाउंड्स के लिए कोई प्लेयर नहीं। अभी भी गेंद उनके पास है, डेंजर एरिया में डालेंगे, चांस नहीं देना चाहिए ऐसे खिलाड़ी को। चांस है लेकिन उतनी अच्छी गोलकीपिंग, अच्छी प्रेशर वर्सोवा द्वारा आजाद के गोल की ओर, मगर काउंटर पर है जीत। काउंटर पर खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे। साइडलाइन थ्रो। आज शुक्रवार का दिन, ऑडियंस धीरे धीरे ग्राउंड का ताबा ले रहे हैं। पंकज क्रॉस करेंगे, जीत फ्लिक किया लेकिन कोई प्लेयर मौजूद नहीं। फिर से एक बार पंकज जिनकी एक्सपीरियंस, जीत स्वदेश, छोटे छोटे पासेस खेलने की कोशिश। ग्राउंड कंडीशन एक तरफा, एक बढ़िया ग्राउंड कंडीशन, दूसरी तरफ ही थोड़ी जो मड है, हैवी है, लूज है, तो उसकी दिक्कत जरूर देखने को मिल रही है। मनीष जतीन शॉट लिया है लेकिन गोल लाइन क्लियरेंस है यहां पर वर्सोवा कोलीवाड़ा द्वारा। पंकज, जतीन, मनीष, उतनी अच्छी डिफेंडिंग, अच्छी गेम का प्रदर्शन। वर्सोवा कोलीवाड़ा जहां पर स्लो करना चाहते हैं स्लो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो डेंजर एरिया में उनको एक मौका मिला था, शॉट्स, उतनी अच्छी डिफेंडिंग भी देखने को मिली आजाद द्वारा। वर्सोवा कोलीवाड़ा अभी भी गेंद युग के पास, मौका है, क्रॉस करेंगे, क्रॉस जरूर किया लेकिन कनेक्शन अच्छी, दिशाहीन शॉट, टारगेट नहीं हिट कर पाए। एक और गोल किक। इसके बाद होने वाला मुकाबला, इसके बाद होने वाला मुकाबला वेलनकनी वर्सेस गोराई। दोनों ही टीम से गुजारिश है अपने किट के साथ रेडी रहे। रिक्वेस्टिंग बोथ द टीम्स, गोराई एंड वेलनकनी। Couldn't control it, couldn't keep it. You got on the counter, puts it first time. Nicely defended there by Jatin. And equally cleared there by Steven. Game though is still with Versova Koliwada. There is a shot straight to the keeper. No risk whatsoever. Manish. A foul from behind. A foul from behind. A foul from behind, easily caught there by the referee. A legendary referee, this one, growing into a good position in the national standard, I would say. One of the best in Mumbai, Sakit. Manish, the experienced campaigner for Azad. Will he make some kind of effort that could prove dangerous? A rather weak clearance there by Azad. Manish flicks it, but a little too over the head for Monish. Couldn't keep the ball in control, gives away the position. Now Jatin takes a shot. Chance, and the rebound couldn't be connected. Brilliant effort there by Jatin. And in the bargain, what a brilliant save there by the goalkeeper. On the rebound was Manish and hits his shin, goes away. Was a chance there. For a moment, the supporting staff thought that's going in anytime. And such is the game, football. A knockout tournament, a chance going away from your team means a big risk of staying alive in the tournament. Jain takes a long kick there. A sideline throw in favor of Azad. Manish gives it back to Steven. Puts it in the center area. Monish regains position. Good turn. Plays it on the flank. Swadesh cuts one. Plays it behind.
to the experienced Swadesh. Puts it in the danger area. Flick. And that could have been the opener. Once again, another chance falling in the place of Manish Kohli. Puts a header, but only to miss the first post. As a result, it is still 0-0. We are in the first half, and I wonder how much time's left in this first half. The game started on a very high tempo, and just as we approach the end of first half, it's getting slower and slower. The climate taking a toll, the weather taking a toll on players. Humidity is high. Soon after this game, Velenkani versus Gorai. And DJ, over to you. The center stage, we know it's getting hot and humid, um, but we also have to understand the certain limit on the break time that we have for this tournament. So after a lot of efforts in the first half, both the teams would want to ensure that in the second half, they do find that goal that they're in search for. And clearly, a tournament of such caliber, of such high, precious, I would say, is something that every team would want to win. And right now, both the home team, Azad Sports Club, versus the team from Versova, the Versova Koliwada, both of them are trying to put their name in the second round. At the half time, the score is locked at 0-0. They're still trying to find the key for that lock. After a great start from Azad, Versova Koliwada coming back strong from the defensive area and trying to put some pressure in the opponent's half.
They did have a couple of chances, couldn't keep the ball on target, and also considering the defensive work from Azad Sports Club, they both arrived on halftime at 0-0. A team who's got so much reputation in the region, and you can say to an extent in Mumbai, Azad Sports Club, with the kind of achievement that they've made in their tenure, clearly led by the likes of Santosh Kohli, Clifford Kilmore, and other qualitative players. Carrying the legacy was one of their stars, named Samuel Jamble Urf Babu, a guy whose performance for Azad was not just mesmerizing, but full of glory days. Clearly a great contributor. And we are witnessing this tournament on his name, in his loving memory. Versova Koliwada trying to start strong in the second half. There's a shot. Doesn't hit the target. Another goal kick. Bright start there by Versova Koliwada. It is going to be critical. The game is designed or is being scripted in a way that you see another shot, and good defensive work there by Mayur ensures that there's no risk whatsoever to the goalkeeper there. Takes a deflection and earns a corner. Versova Koliwada. The initial part of the second half, Versova seemingly putting pressure on Azad. A corner. Still the game in play. The referee there. Now Yash playing on front. Swadesh. Foul after the ball was played. A foul committed unnecessary because there was no risk whatsoever. The ball was any which way being played behind. Nevertheless, a decision made by the defender could put his team in danger, because this is a free kick, a set piece that Azad is well known to convert in most of the occasions. So far in this game, they haven't been able to take advantage of it. This is another chance. And lining it up is Manish. Flicks it. And Jayu once again clears it with his safe hand in the goalkeeping area. Straight to the goalkeeper, that one. Pankaj, with his experience, taking the corner. In the danger area is where they need the ball. Monish, nobody making a run on that first goal. The first post, which is something that you expect from a striker, but we haven't been able to see that. Pankaj gives it away, keeps the ball, puts it in the danger area, doesn't succeed. Mayur still regains position. Manish dispossessed on the counter. Versova Koliwada, but brilliant work there by the striker, who comes. Ball goes out of play. A goal kick. गोराय and वेलनकरी दोन्ही संघांना विनंती करतो, तुमचे किट बरोबर तुम्ही रेडी राहावं. दिवसाचा चौथा राऊंड, चौथा मॅच चालू आहे इथे. आझाद वर्सेस वर्सोवा कोलिवाडा दोन्ही संघांनी अजूनपर्यंत चांगला प्रयत्न केला आहे, पण गोल. मनीष, डेंजर मैन, मनीष फॉल फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से खींचा, और ये मौका था एक बढ़िया टर्न. येलो कार्ड मिलता हुआ, येलो कार्ड मिलता हुआ
और करने की जरूरत, क्योंकि डेंजर मैन वहां पर फिर चुके थे, गोल की ओर अपना कदम बढ़ा ही रहे थे, मगर फाउल करते हुए पीछे से खींचा, येलो कार्ड कमाया। एक और सेट पीस आजाद को, एक अच्छा मौका बना था और शायद गोल कर देते थे मनीष। जिस तरीके की फॉर्म में है, जिस तरीके की काबिलियत रखते हैं मनीष, 1-0 वहां पर होने को ही था, मगर डिफेंडर ने एक बढ़िया काम किया, येलो कार्ड खाया। कोई मॉरिस शॉट लिया लेकिन दिशाहीन था, फ्लैंक पर खेल दिया है। काउंटर पर वर्सोवा कोलीवाड़ा गेम की जो पेस है उसको स्लो किया है। जब भी आपके ओपोनेंट आप पर भारी पड़ रहे हो तो या फिर काउंटर पर खेले या फिर गेम का मौका है, चांस था, लेकिन कॉर्नर जरूर कमाएंगे अपने टीम के लिए, लेकिन गेंद अंदर है और दोनों ही रेफरी ने कॉर्नर यहां पर वर्सोवा कोलीवाड़ा के लिए। एक अच्छा मौका डेंजर एरिया में डाला था, लेकिन सैबी वहां पर मौजूद थे। 50-50 गेंद क्लियर करने में कामयाब रहे और भाग्यशाली समझेंगे वो, क्योंकि गेंद गोल की ओर नहीं गई। कॉर्नर मिलता हुआ यहाँ पर मॉरिस, इन्होंने अच्छे से रीड किया, गेंद को जाने दिया, थ्रो मिलेगा, साइडलाइन थ्रो। जल्द से खिला हुआ यश के पास गेंद, कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद दिया वापस। अच्छी कट, नंबर 7 की जब शॉट लेना था लेकिन कंट्रोल नहीं, दिशाहीन शॉट। दोनों ही टीम अभी भी संघर्ष करते हुए ऐसा लगता है कि फाउल का करार दिया। हाथों का इस्तेमाल, एक और सेट पीस की कमी नहीं, लेकिन सेट पीस की भरपूर फायदा भी नहीं उठा पाए हैं। इस बार सेट पीस लेने के लिए पंकज अपनी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मनीष, स्वदेश, यश, सारे के सारे प्लेयर मौजूद। फ्लिक किया है सेकेंड पोस्ट पे, उतनी अच्छी गोलकीपिंग, क्लियर करने में कामयाब। चांस बन सकता है, मनीष के पास गेंद, लेकिन उतनी अच्छी डिफेंडिंग यश, जतीन के पास थोड़ी दूर, कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी भी गेंद यश के पास, फ्री की कमाने की कोशिश नाकामयाब। अच्छी तरह परख रहे गेंद को साकेत। जतीन, मनीष के पास गेंद, मनीष दोनों ही पैरों से शूट लेते हैं। मयूर पंकज के लिए, शॉट लेने की कोशिश पंकज द्वारा डिस्पोजेस किया। युग काउंटर पर खेलना चाहेंगे, वर्सोवा कोलीवाड़ा फ्लैंक पर खेला है और ये चांस गवाते हुए वर्सोवा कोलीवाड़ा काउंटर पे बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस चीज की खातरी होनी चाहिए आजाद स्पोर्ट्स क्लब को। पंकज जो अपने आप को कमिट कर लेते हैं आगे, फिर डिफेंसिव एरिया में जो जगह मिलती है ओपोनेंट को, ये डेंजर हो सकता है। साइड लाइन थ्रो आजाद के पक्ष में। मनीष क्रॉस करना चाहते थे या शॉट लेना चाहते थे,
कंफ्यूज हुए हैं शायद डिसीजन मेकिंग में वहां पर पंकज, और ये ज्यादा देखने नहीं मिलता है कि आप पंकज की ओर से डिसीजन मेकिंग में इतनी सोच नहीं डालते। क्विक डिसीजन होता है उनका, मगर इसी दौरान मॉरिस एक अच्छी डिफेंसिव हेडर, जतीन फाउल का करार, एक और सेट पीस। दोनों ही टीम को भरपूर सेट पीस मिले हैं, ज्यादातर आजाद की टीम को, मगर फायदा नहीं उठा पाए। अभी पोजीशन और सेट पीस दोनों ही वर्सोवा कोलिवाड़ा के पास है। देखेंगे क्या वो फायदा उठा पाएंगे। अच्छे से ले हुआ सेट पीस, उतनी ही अच्छी तरह डिफेंस किया हुआ मयूर। पंकज फर्स्ट टाइम खेला है, बढ़िया गेंद, स्वदेश पीछे से टैकल, एक और सेट पीस का मौका है ये आजाद के लिए। इस तरह से खोज में निकले हैं कि भैया अगर सोने की खोज में निकलते वो भी मिल जाता, मगर ये गोल नहीं मिल पा रहा है। पंकज फ्लिक किया, लेकिन फिर से बाउंस यहां पर काउंटर पर वर्सोवा कोलिवाड़ा खेल दिया है। जीत मौजूद, मौका है, लेकिन उतनी अच्छी गोलकीपिंग, कॉर्नर जरूर कमाएंगे। गलती जरूर की थी डिफेंसिव एरिया में, लेकिन अच्छी कमबैक वहां पर आजाद द्वारा अपने गोलकीपर सैबी ने अपने टीम को यहां पर अभी भी इस गेम में रखा है। कॉर्नर, प्रेशर, काउंटर जरूर होता है। अगर एक टीम को सेट पीस मिलता है तो ओपोनेंट काउंटर पे जरूर फायदा उठाने की कोशिश। हेडर लिया बहुत ही दूर से, लेकिन दिशाहीन। अभी भी 0-0। फिर से एक बार गोल किक लेने के लिए तैनात पंकज। डेंजर एरिया में डालने की कोशिश जरूर करनी होगी। मनीष फ्लिक किया, जीत कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन डिस्पोजेस। फिर से एक बार काउंटर पे वर्सोवा कोलिवाड़ा पेस रुकाते हुए, गेम को करते हुए छोटा अच्छा पास दिया। अच्छी डिफेंसिव वर्क, मगर गेंद अभी भी वर्सोवा कोलिवाड़ा के पास। युग एडवांटेज खेला है, मौका हो सकता है। अच्छी डिफेंडिंग, अच्छी गोलकीपिंग, फिर से सैबी। साइड लाइन थ्रो, मॉरिस कंट्रोल नहीं कर पाए, यहां पर पोजीशन गंवा रहे हैं आजाद की टीम। और दूसरी ओर जितनी पेशेंस अपने को दिख रही है वर्सोवा कोलिवाड़ा की ओर से, ये लाभदायक हो रहा है वर्सोवा कोलिवाड़ा के लिए। फ्लिक किया, लेकिन साइड लाइन थ्रो वर्सोवा कोलिवाड़ा के पक्ष में। काफी ज्यादा सपोर्ट साइड लाइन पर दोनों ही टीम के लिए। लोगों का उत्साह कि ये अंतिम क्षणों में क्या हो पाएगा, क्या हो सकता है। सैबी को जल्दी से गेम शुरू करने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार कंट्रोल नहीं कर पाए, फाउल करार दिया है। तुरंत इस गेम के बाद होने वाला मुकाबला वो होगा गोराई वर्सेस वेलेनकनी। जूझ जरूर रहे हैं दोनों ही टीम। However, the ultimate goal that they are looking for is still not been seen in either of their sides, because the kind of effort that we see from the strikers, from the midfielders,
have been nullified by the effort made in the defensive area. Both the teams got very strong teams in terms of their defense line and doing a fantastic job. A lot of set pieces, a lot of fouls, nothing taken for the advantage. There's one, but it's from their own half. Pankaj putting it in the danger half. Corner is what they earn. Once again, like to announce the effort made by the organizing committee, the Azad Sports Club. A corner in the meantime. A goalkeeper puts it out of danger. Jatin cuts one. Tries to put it on the flank. Doesn't succeed. On the counter now is Versova. Pankaj gives it away. Dispossessed. A foul from behind, says the referee. A set piece once again in the danger area. On the counter was trying to play Versova, but this could be an opening for Versova. They got to commit a lot of players inside, but they know how dangerous Azad can be on the counter. Quickly taken, wayward shot, way too wide. And that marks the end of second half, which means it's gonna be the penalty. कोई स्कोर देखने नहीं मिला और इसी दौरान पेनल्टी शूटआउट होगा द बेस्ट ऑफ 5 पेनल्टी शूटआउट दोनों ही टीम आजाद और वर्सोवा कोलिवाड़ा वर्सोवा कोलिवाड़ा की ओर से शॉट लेंगे और उसी तरह आजाद की टीम सेव करेगी बेस्ट ऑफ 5 पेनल्टी शूटआउट जो कि एनीबडीज गेम है दोनों ही टीम को 5-5 मौका दिया जाएगा हमिंग होगा और रेफरी साकेत गोलकीपिंग की रूल्स समझाते हुए
जैसे हम सब जानते हैं पिछले डेढ़ डेढ़ वर्षों में गोलकीपिंग की जो पेनल्टी के जो रूल्स है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। पहला शॉट लेने के लिए वर्सोवा कोलीवाड़ा तैनात। अच्छे से लिया हुआ शॉट, सही जगह छलांग जरूर लगाया था मगर पेस काफी कुछ ज्यादा। 1-0 वर्सोवा कोलीवाड़ा। आजाद की ओर से आएंगे स्टीवन, चाहेंगे अपनी टीम को वापसी करे और 1-1 की बराबरी पर लाकर छोड़े। ये पहला शॉट बीट जरूर किया था गोलकीपर को मगर टारगेट भी बीट किया है और क्रॉस बार को लगकर गेम बाहर। एडवांटेज वर्सोवा कोलीवाड़ा। गोलकीपिंग में तब्दीली, आजाद की ओर से सेव करना जरूरी। और टारगेट हिट किया, बाहर मार दिया है। यहां पर टारगेट मारने में चुके हैं, मतलब मौका जरूर है आजाद को कम बैक करने के लिए। 2 शॉट 1 स्कोर। आजाद की ओर से 1 शॉट, कोई भी गोल स्कोर नहीं किया। एक सुनहरा मौका है गेम में वापसी करने के लिए और यही बात है ये पेनल्टी शूटआउट्स की। जैसे ही आपको लगा कि आपकी टीम ट्रेल कर रही है, तुरंत हमने काफी वक्त देखा है ये सीजन यहां पर इसी ग्राउंड में एडवांटेज होने के बावजूद गेम गवाया है। मोनिश यहां पर बढ़िया पेनल्टी लेते हुए अपनी टीम को बराबरी पर लाकर छूटे। 2-2 मौके, 1-1 गोल करने में सक्षम। और फिर से एक बार ये गेम, फुटबॉल का गेम हमें फिर से यही सिखा रहा है कि भैया जब भी आपका पल्ला भारी हो, गेम को आसानी से मत लेना, क्योंकि मौका जरूर बनेगा ओपोनेंट को वापसी करने में। और यही देखने को मिला है हमें पेनल्टी शूटआउट पर 1-1 की बराबरी पर।
युग सेव किया है मनीष, इन्होंने जिनकी काबिलियत पेनल्टी शूटआउट पर गोलकीपिंग की बढ़िया रही है, एक अच्छा रिकॉर्ड के साथ चल रहे हैं। हमेशा जब भी गोल में पेनल्टी शूटआउट सेव करने आते हैं तो जरूर अपने टीम का फायदा दिलाते हैं, एडवांटेज दिलाते हैं। उसी तरह अभी भी तीसरा शॉट वर्सोवा कोलीवाड़ा का यहां पर फेस करते ही 3 में से और बढ़िया सेव यहां पर जयेंद्र द्वारा की जरूरत है। अगर चूकेंगे तो वो आउट करेंगे टूर्नामेंट से, तो मौका, एक बढ़िया मौका यहां पर मनीष और उनकी कंपनी को। Double advantage for Azad here. Versova have to score to keep themselves alive. A do or die for Versova. A winning chance. If it is saved, they're going to be coming back into this game, Versova Koliwada. Nicely done. It is Azad who's going to make it through to the second round. And Versova Koliwada, after a brilliant performance, will bow out of this tournament. Requesting the team. Versova संघाचे जे सर्व प्लेयर्स आहेत त्यांच्याशी विनंती करतो पवेलियन बॉक्सच्या बाजूला यावं. We have to share with you the token of appreciation. So requesting Versova Koliwada.